Hello friends, I am Ajinder Rana and today's topic from class plus 2 and the topic is of physics electric dipole in uniform electric field in two dimensional electric field है उसमें कितना अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसमें रखेंगे तो उसके साथ क्या होगा हम उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर ओके इस लेक्चर के अंदर सो स्टे विद अस हम अभी वापस आते हैं ओके फ्रेंड्स तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको सो यहाँ हमने एक फिगर बनाई है उस फिगर में देयर इज अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज एट द A पोजीशन A there is negative charge minus q at position B there is positive charge plus q okay so if electric field is in this direction and everybody knows electric field moves from positive to negative imagination में सोचिए यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा है सो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सो व्हाट आई सी दैट नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड्स तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक हो जाएगा ये पॉजिटिव पर नेगेटिव पर अटैक हो जाएगा और हम सभी जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दैट फोर्स इज नोन एज दैट फोर्स जब ब्लू जो यहाँ दिखा रहा हूं मैं ये दैट फोर्स इज q into e q into e that will be in the upward direction for positive charge and here is also q into e but for negative charge it will be downwards ये downward लगती है so what I see मैंने यहाँ पर जब देखा तो मैंने देखा there are two forces that are equal in magnitude but they are opposite in direction like this that is downward that is upward like this इस तरह से so जब कोई दो equal charges equal forces जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है दे फॉर्म अ कपल और जब कोई कपल क्रिएट होता है तो वो कपल जो है एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं हम टॉर्क कहते हैं सो यहाँ पर मुझे टॉर्क के बारे में डिस्कशन करना है टॉर्क के बारे में देखना है कि टॉर्क क्या चीज होती है और कैसे निकाली जाती है सो मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ लाइक फोर्स ऑन -2 जो नेगेटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगेगी that will be q into e downwards और force on plus q ऊपर जो force लगेगी it will be the same but it will be upwards ठीक है and these forces will form a couple they will form a couple equal and opposite forces will form a couple when they will act at the two different positions दो अलग-अलग जगहों पर ये काम करते हैं अगर there is a couple then there must be a torque okay so the formula for torque is either force into the perpendicular distance what distance it is it's the perpendicular distance between the two forces okay either force means q into e one of the force कोई भी ले लीजिए q into e okay and we need a perpendicular distance the perpendicular distance this is the force upward this is the force downwards so that a to c is the perpendicular distance so I am just writing value AC that AC is the perpendicular distance okay how to find that AC इस AC को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा in right angle triangle ABC here the angle theta it is the angle between the electric field and the dipole moment the direction of dipole moment the direction of dipole moment is from negative to positive so it is the direction of dipole moment it is the direction of electric field and the angle between them is theta so by the alternate angles if that angle is theta then angle at B जो इस triangle ABC में inward बनेगा that also be theta वो भी theta होगा so by using that trigonometry इस right angle triangle में
AC is my perpendicular, A to B is my hypotenuse, then AC upon AB is sine of theta. A to B, it is the length of the dipole, which is treated as a 2A, 2L, whatever you want to say. So AC, that AB goes there, will be 2A sine theta. So in that box, we have calculated value for AC. Now the formula for the torque becomes QE into 2A sin theta. हमने जो AC निकाला था यहाँ पर उस AC की वैल्यू पुट कर दी है 2A sin theta. एंड थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो that Q into 2A, that is E, and that is sin theta. And everybody knows that Q into 2A, charge into the distance, is known as dipole moment. So torque is nothing but it is PE sin theta. It is known as PE sin theta. Okay, as we know that torque is a vector quantity, dipole moment is a vector quantity, electric field is a vector quantity, and it is the product of two vector that is giving a vector. So here the product must be a cross product. ये cross product होना चाहिए. So sin theta shows the cross product. So in the vector form, अगर मैं इसे vector form में लिखना चाहूँगा, तो that torque will be in the vector form P vector cross E vector. So this is my end result here, that torque vector is equal to P vector cross E vector. There are PE sin theta. Okay. इसकी दो सिचुएशंस हैं जिनको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशंस. वन ऑफ देम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनदर वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देखिए अगर ये डाइपोल जिसको ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे टर्न हो रहा है, ये टर्निंग इसको ऐसे ले आएगा. सो देखिए इस पॉजिटिव को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, इस नेगेटिव को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है. पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे की तरफ. तो जब ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे और ऐसे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस तरीके से, तो इट विल बी अ स्टेबल सिचुएशन. ये आगे टर्न नहीं कर सकता. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टडी वी गॉट इफ थीटा इज 0 डिग्री, it is a stable equilibrium. When theta is 0 degree, it is a stable equilibrium. Okay, and for the second one, suppose it get turned by like this, means to say I am saying that positive is downward, negative is upward. ये यहाँ पर किसी ने जबरदस्ती होल्ड किया है, तो there is a positive charge downwards, there is positive of the dipole, these will repel each other. These will repel each other. तो इस चार्ज पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, लाइक ऐसे अपवर्ड फोर्स लगेगी. सेम नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, नेगेटिव पर डाउनवर्ड, पॉजिटिव पर अपवर्ड. इसको ऐसे घुमाएंगे, पॉजिटिव को नीचे ले आएंगे, नेगेटिव को ऊपर लेके आएंगे, तो पॉजिटिव की फोर्स अपवर्ड और नेगेटिव की फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी. तो जब दोनों फोर्सेस ऐसे हिट करेंगी, इस तरीके से करें, तब भी ये घूम नहीं सकता है, आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में. बट उस केस में ये होगा कि अगर मैंने इनको जरा सा, किसी ने जरा सा भी टिल्ट कर दिया, ऐसे करते ही दोबारा घूम जाएगा, ये दोबारा घूम जाएगा और अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाने लगेगा. तो यानी कि है तो ये फिर भी इक्विलिब्रियम में, पर वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा. वो केस होगा जब ये थीटा जो है पूरा घूम जाएगा. ये थीटा जब लाइक ऐसे घूम जाएगा तो ये 180 हो जाएगा. सो इफ थीटा इज 180 डिग्री, it is an unstable equilibrium. तो ये unstable equilibrium की सिचुएशन होगी. तो इसमें हमने देखा टॉर्क either force into the perpendicular distance, either force QE यूज किया गया, एक फोर्स अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड लगाई गई है, एक ट्रायंगल का यूज किया, राइट एंगल ट्रायंगल का, जिससे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट किया है. यहाँ पर Q into 2A जो है वो डाइपोल मोमेंट बन जाता है. sin थीटा जो है डिनोट्स दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट बनाया P क्रॉस E. फिर हमने दो तरह की सिचुएशंस देखी. वन ऑफ देम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनदर वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल जो है 0 डिग्री होना चाहिए और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एंगल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.